Are you able to see my screen? So preference shares are to be reduced to rupees 50 each and equity shares to rupees 2 each, both being fully paid up. Both being fully paid up means जो change हो रहा है वो face value है. अब ये एंट्री हम सब कर सकते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू चेंज करनी है और इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू चेंज करनी है. तो लेट अस चेंज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, रिड्यूस द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. चलो जिसको एंट्री आती है रेज योर हैंड सो दैट आई विल अनम्यूट समवन. चलो टेल मी. नेहा शिंदे हैज रेज हैंड. जिनको एंट्री आती है रेज योर हैंड सो दैट आई विल अनम्यूट योरसेल्फ. I'll unmute you and you can answer. चलो नेहा बोलो. हाँ नेहा बोलो. 10% preference share account capital, no, old face value 100. लिखो साथ में. 10% preference share capital, old face value 100, old face value 100. To preference share capital is 8 lakhs. 8 lakh. To preference share 10%, percentage change नहीं हो रहा है, to 10% preference share capital, new face value कितना? 50. New face 4 value lakh. 4 lakhs. To capital reduction account 4 lakh. To capital reduction 4 lakhs. Yes. Correct है entry. चलो who will tell me similarly? Similarly कौन बताएगा equity share capital की? Equity share capital is 10 rupees 20 lakhs. New face value is 2 rupees. कौन बता रहा है? Can raise their hand or you can write it on the chat box. But at a time handling both the things is very difficult. नेहा आपका हो गया, अभी आप hand raise करो ही मत, मैं नहीं दूंगी chance. Ashwini, can you try? Ashwini Gele, can you try? Ashwini unmute करो खुद को और try करो. Yes Ashwini बोलो. आवाज नहीं आ रही आपकी. Equity share capital debit. Equity share capital, old face value debit. Old face value is 10. Old face value debit. To equity share capital. Equity share capital. New face value कितना है? New face value is 2. To capital reduction account. चलो फिगर बताओ. ये इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू है 20 लाख. ये दिख रहा है इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. ये 20 लाख है, तो यहाँ पे मैंने लिया 20 लाख. 2 रुपीज के लिए कितना होगा? 20 lakhs into 2 डिवाइड बाय 10. 20 lakhs into 2 डिवाइड बाय 10. क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 20 लाख को 2 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया. अश्विनी कितना आता है? 20 lakh into 2 divide by 10. How much it comes to? 40
40,000. 4 लाख आता है, 40,000 नहीं आता है, 4 लाख आता है। एंड ये आ जाएगा 16 लाख बैलेंस अमाउंट। ठीक है, 20 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे, दिस इज 16 lakhs। वेरी गुड अश्विनी, म्यूट योरसेल्फ नाउ। Now let us check next adjustment. Of the preference dividend in arrear, 3/4 to be waived. 3/4 देने का ही नहीं है। 3/4 is to be waived and remaining to be paid immediately. Remaining कितना बचा remaining? What remains? Remaining कितना है? What remains? चलो बोलो। अगर सेव हो गया तो बचा कितना? 1/4 बचा। 1/4 मतलब कितना होता है? 3 साल में से, सॉरी का अरियर्स है, 4 साल में से 3/4 चला गया तो 1/4 कितना हुआ? 1 ईयर। 4 साल है, उसमें से बोला है 3/4 नहीं चाहिए। 3/4 नहीं चाहिए मीन्स 3 साल का डिविडेंड नहीं चाहिए। चाहिए कितने साल का डिविडेंड देना है? 1 साल का। 1 साल का डिविडेंड टू बी पेड। 1 साल का डिविडेंड अगर हम निकालेंगे, इफ वी कैलकुलेट 1 साल का डिविडेंड 80,000 होता है। लेट अस कैलकुलेट एंड सी। 8 लाख का 10%, 8 lakh into 10%, that comes to 80,000. Hello. Yes, good morning. First year which class? First year BCom BMS. Which faculty? BMS, okay. Yes. Yes, it is. It is yet open. It is yet open. It is open. You can go to college and find out the inquiry. Okay. Or otherwise you can send me your name on WhatsApp. I'll send you the procedure. Okay. Okay. Okay, fine. Bye. Sorry for the disturbance. Of the preference dividend in arrears, 3/4 to be waived and remaining to be paid immediately. Remaining बचा कितना? 1 साल का डिविडेंड बचा है। 1 साल का डिविडेंड पे करना है 80,000। चलो किसको एंट्री आती है? रेज योर हैंड। 80,000 डिविडेंड हमको पे करना है। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये 1 साल मुझे कैसे आया, तो 4 into 1 divided by 4 is 1 year. समझ में आया? 3/4 वेव ऑफ हो गया, 3/4 माइनस कर दिया तो 1/4 बच गया, तो 1/4 के लिए अमाउंट कैलकुलेट किया है। ओके, चलो एंट्री। अब of the preference dividend in arrears, कोमल, सुदर्शन और कोई है? Of the preference dividend in arrears, 3/4 is waived off, remaining to be paid immediately, means 80,000 is paid. Khushbu, yes, very good. This is what I want you all to do. Yes, Khushbu, unmute yourself and answer. Dividend on preference share account debit Ma, 3,20,000. this is entry for what? The shares in Khushbu, arrears. preference dividend is an unrecorded liability. Sudarshan, I'm repeating. Preference dividend is an unrecorded liability. Okay. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर वेव ऑफ होता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं आती है, लेकिन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आप पे करते हो, जब भी प्रेफरेंस डिविडेंड हम पे कर रहे हैं तो देयर इज लॉस। लॉस है तो कौन से अकाउंट से पे करेंगे?
दिस इज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट एम्पियर ही नहीं कर रहा है. यू हैव टू पे इट आउट ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. क्या एंट्री होगी? Capital reduction account debit to dividend on preference shares account 80,000. You are paying in cash. आप कैश में पे कर रहे हो. देखो सिंपल है, प्रेफरेंस डिविडेंड करके अकाउंट ही नहीं है. ठीक है, आप पेमेंट कर रहे हो मतलब पैसा जा रहा है टू कैश या बैंक. ओके, एंड To दिस bank, इज अ yes. लॉस. दिस इज अ लॉस. हमने सोचा नहीं पे करना था और पे करना पड़ रहा है. सो एंट्री इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक. हाँ, अभी सुदर्शन आप अपना डाउट पूछो. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू capital reduction account debit to bank. Sudarshan, you can ask your doubt. नेहा हाथ नीचे कर दो, थक जाएगा आपका हाथ. अमाउंट इज 80,000. मैं रिपीट करती हूँ यहाँ पे. देखो आपको बोला था 4 years डिविडेंड अरियर्स में. 4 years का डिविडेंड अरियर्स में. ठीक है, 3/4 वेव ऑफ हुआ तो 4 years का मैंने 3 डिवाइड बाय 4 किया तो मुझे आंसर आया 3 years. 3 years का डिविडेंड वेव हो गया. 4 years में से 3 years अगर मेरे को नहीं पे करना है मतलब बचा कितना ईयर? 1 year का पे करना है. 1 year का जो पे करना है वो कैलकुलेट किया मैंने. 10% ऑफ 8 lakhs. 10% ऑफ 8 lakhs जब मैं कैलकुलेट करती हूँ तो मुझे फिगर आता है 80,000. ये 80,000 मैंने पे किया. समझ में आया? इज इट क्लियर? प्रथमेश क्या डाउट है बोलो. प्रथमेश अनम्यूट योरसेल्फ. मेरे से नहीं हो रहा है. अनम्यूट एंड टेल. आवाज नहीं आ रही है, बहुत नेटवर्क डिस्टरबेंस है, आवाज ही नहीं सुनाई दे. मैम सेकंड वाली एडजस्टमेंट रिपीट करो ना. ये सेकंड ही चालू है ना शायद. यही सेकंड है ना प्रथमेश? यही है ना. देखो आपको क्या बोला है, कैप प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया, 1 साल का डिविडेंड पे किया. 1 साल का अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो इफ यू आर पेइंग डिविडेंड फॉर 1 year, 1 साल का अगर मेरे को डिविडेंड पे करना. पहली बात तो देखो ये समझो 4 साल है, उसमें से 3/4, 4 का 3/4 निकालोगे तो 3 आता है. 4 4 कैंसिल हो गया, 3 बचा. 3 साल का डिविडेंड वेव ऑफ हो गया. बचा कितना? 4 में से 3 वेव ऑफ हो गया तो बचा कितना? 1 साल का डिविडेंड आप पे कर रहे हो इमीडिएटली. डिविडेंड इज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. नोट में दिया है ना, मतलब ये लाइबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इसको पे करना है. वेव ऑफ की तो एंट्री आएगी ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो लाइबिलिटी नहीं है. लेकिन अगर आप अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे करते हो तो इट इज योर लॉस. लॉस है तो उसका इफेक्ट जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में. एंट्री इज वेरी सिंपल. कैपिटल रिडक्शन से पे करेंगे. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड अमाउंट इज 80,000. और 80,000 कैसे आया? 8 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसका मैंने 10% निकाला, दैट कम्स टू 80,000. Is it clear? आया सुदर्शन, प्रथमेश. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट. डिबेंचर होल्डर टू टेक ओवर प्लांट एंड मशीनरी एट ₹13 lakhs इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम. उनके क्लेम के पार्ट सेटिस्फैक्शन में, मतलब हम पूरा अमाउंट नहीं पे कर रहे. रिमेनिंग क्लेम शुड बी कन्वर्टेड इनटू 15% डिबेंचर्स. सबसे पहले देखते हैं अभी डिबेंचर्स है कितना. डिबेंचर्स का क्लेम कितना है? 15 लाख है. 12% डिबेंचर इज 15 लाख. दिस इज फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड. कि 12% डिबेंचर है 15 लाख.
प्लांट एंड मशीनरी है कितना है, 12 लाख है ना. Plant and machinery is 12 lakh. Plant and machinery is given to debenture holder at 13 lakhs. मैं ना यहाँ पे लिखती हूँ, प्रॉब्लम में ही लिखती हूँ यहाँ पे कहीं पे, तो ठीक है यहाँ पे लिख रही हूँ. ओके, योर डिबेंचर्स 12% डिबेंचर्स 12% डिबेंचर इज कितना, 15 lakhs. ओके, 12% डिबेंचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको ध्यान से समझना. मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ. प्लांट एंड मशीनरी इज 12 lakhs. अब बोला क्या है, ये जो 12 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है, ये डिबेंचर होल्डर ने कितने में लिया है, 13 lakhs में. अभी एक एसेट जो 12 लाख का है उसको टेक ओवर किया है 13 lakhs में, और जो बचा हुआ डिबेंचर होल्डर का क्लेम है उसको कन्वर्ट कर दिया है, जो भी बच जाएगा. अभी 15 लाख में से 13 लाख तो हम प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हैं, जो बच जाएगा बैलेंस इज कन्वर्टेड इनटू 15% डिबेंचर्स. कशिश दे रही हूँ चांस. बैलेंस डिबेंचर इज कन्वर्टेड, बैलेंस इज कन्वर्टेड इनटू 15% डिबेंचर्स. अभी मैं रिपीट करती हूँ ये एडजस्टमेंट. जैसे हम इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं ना, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट 13 लाख में, तो 1 लाख प्रॉफिट हुआ. तो ये 12 लाख का जो मशीनरी है वो 13 लाख में दे रहे हैं डिबेंचर होल्डर को. साथ में अगर 12 लाख का प्लांट एंड मशीनरी 13 लाख में दे रहे हैं तो 1 लाख मुझे प्रॉफिट हो रहा है. सबसे पहले मुझे ये समझना है कि देयर इज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख. If I give 12 lakh plant and machinery at 13 lakh, तो I have a profit of 1 lakh. पहला पॉइंट. अभी कौन बताएगा मुझे ये एंट्री? ये एंट्री बताने के बाद ही एक्सप्लेन हो सकती है. Anyone would like to try can raise your hand. डिबेंचर्स को हम सेटल कर रहे हैं. यश, कशिश बोलो. कशिश, आपका हैंड रेज होता है फिर डाउन हो जाता है, मैं आपको अनम्यूट कैसे करूं? बहुत अच्छी एंट्री है. इफ एनीवन कैन यूज देयर हेड कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड. अनम्यूट नहीं हो रहे हो, करो खुद को. मैम हाँ, मैम डिबेंचर अकाउंट, सॉरी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 15 lakhs to 12%. plant and एक मिनट machinery. एक मिनट एक मिनट. 12% डिबेंचर्स डेबिट कितना, 15 lakhs. हम क्योंकि डिबेंचर्स को सेटल कर रहे हैं एंड डिबेंचर्स का अमाउंट है 15 लाख. करेक्ट. To plant and machinery account टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 12 lakhs. 12 lakhs. ओके. Ma'am, to capital reduction account 1 lakh. टू कैपिटल रिडक्शन 1 lakh. वन लाख. ठीक है. And to 15% debenture account 2 lakhs. टू 15% डिबेंचर्स 2 lakhs. हाँ, कशिश एंट्री इज करेक्ट. चलो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि कैसे ये एंट्री करेक्ट है. निकिता, डू यू एग्री विद दिस एंट्री? सबसे पहले तो डिबेंचर होल्डर निकिता लिखना ही गलत है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर हमने अमाउंट डिबेंचर होल्डर में नहीं ट्रांसफर किया. हम जो भी कर रहे हैं वो डिबेंचर अकाउंट से कर रहे हैं. रेस्ट आई थिंक योर एंट्री इज करेक्ट. 12% की जगह वो 15% होगा. एक चीज और, चलो लेट अस सी. हाँ, प्लान 2 ईयर वेव हुआ तो राहुल तो 2 ईयर का अमाउंट पे करेंगे ना.
अभी ना 2 मिनट में लेट अस सी 12%। देखो एंट्री में जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में, डिबेंचर्स को हम सेटल कर रहे हैं, डिबेंचर्स का क्लेम। तो मैंने क्या किया, 12% डिबेंचर डेबिट किया डिबेंचर अमाउंट से 15 लाख। प्लांट एंड मशीनरी, अगर कोई 12 लाख का प्लांट एंड मशीनरी 13 लाख में ले रहा है, मतलब 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है। मुझे दिखाना है प्लांट एंड मशीनरी एट बुक वैल्यू दैट इज 12 लाख एंड टू कैपिटल रिडक्शन 1 लाख, ये प्रॉफिट। बचा हुआ अमाउंट बोला है 15% डिबेंचर्स में, तो बचा हुआ अमाउंट मैंने लिख दिया 15 माइनस 13, बचा हुआ अमाउंट कितना है 2 लाख, दैट गोज टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट। अभी कितने लोगों को ये एंट्री नहीं समझी है, बोलो फटाफट। कितने लोगों को एंट्री नहीं समझी है, बोलो फटाफट। सबको समझ गए? तो चैट बॉक्स फिर से समझाओ मैम। ठीक है मैम, मुझे नहीं समझी। ओके, अभी क्या बोला है, 15 लाख का डिबेंचर है, उसको हम पार्टली हम प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हैं और पार्टली हम उसको 15% डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो एडजस्टमेंट के दो पार्ट है, एक पार्ट में डिबेंचर्स को हम क्या दे रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, दूसरे पार्ट में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं बचे हुए अमाउंट को। 3 लाख किधर से आएगा कैपिटल रिडक्शन? अरे 3 लाख कैपिटल रिडक्शन नहीं आ सकता ना, 3 लाख कैसे आएगा कैपिटल रिडक्शन? 3 लाख कैपिटल रिडक्शन कैसे आएगा? 3 लाख कैपिटल रिडक्शन नहीं आ सकता है, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन, ध्यान से समझो, देखो 15 लाख का डिबेंचर है, आप उनको मशीनरी दे रहे हो 13 लाख में, ठीक है, तो 2 लाख बच गया। फिलहाल प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट और बुक वैल्यू और प्रॉफिट को छोड़ दो, 15 लाख में से 13 लाख का मशीनरी दिया तो बचा 2 लाख। वो 2 लाख को कन्वर्ट करने बोला है 15% डिबेंचर्स में, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि प्लांट एंड मशीनरी मेरे बुक में 12 लाख है, अगर 12 लाख का मशीनरी में 13 लाख में दे रही हूँ तो मतलब 1 लाख मुझे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल रिडक्शन में जाता है ना। आर यू गेटिंग इट? अगर सपोज आप प्लांट एंड मशीनरी 13 लाख में सेल करते हो तो आप एंट्री क्या लिखते हैं, बैंक डेबिट। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बैंक डेबिट 13 lakhs, ठीक है, टू प्लांट एंड मशीनरी 12 lakhs एंड टू कैपिटल रिडक्शन 1 लाख। अभी ऐसे ही करते थे हम एंट्री, यहाँ बैंक की जगह पे यहाँ पे क्या है, डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है 15 लाख। हमने पूरा 15 लाख इसलिए लिया क्योंकि हम लोगों को बाकी अमाउंट 15% डिबेंचर्स में दिखाना है, इसके लिए मैंने डिबेंचर्स यहाँ पे 15 लाख लिया, मशीनरी की बुक वैल्यू 12 लाख, प्रॉफिट 1 लाख एंड 15% डिबेंचर्स 2 लाख। इज इट क्लियर? नहीं, वी कैन नॉट राइट डिबेंचर होल्डर अकाउंट, क्योंकि हमने डिबेंचर्स का अमाउंट डिबेंचर होल्डर अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया है। हम अगर आपको डिबेंचर होल्डर लिखना है ना, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 15 lakhs, फिर डिबेंचर होल्डर टू प्लांट एंड मशीनरी टू कैपिटल रिडक्शन टू 15% डिबेंचर, एक एंट्री बढ़ जाती है। हमारे पास एज सच डिबेंचर होल्डर अकाउंट है ही नहीं। ओके, सो एनीवन एल्स, एनी डाउट? ऐसी एंट्रीज अभी आगे बहुत आने वाली है, सो डोंट वरी, we'll be having many entries. Sunan, I am leaving this meeting. We'll join back. Join back immediately.